Good morning, children. All of you, please open your English language book to page number 5. Today we will study the new chapter, that is subject and predicate. What we will study today, children? Subject and predicate. Before starting this chapter, children, subject and predicate, I want to ask you whether you have remembered the definition of a sentence or not. In your previous chapter, that is chapter 1, I have explained you about the sentence. Now, what is a sentence, children? A sentence is a group of words that makes a complete sense. I have explained you this in your previous chapter. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Groups of words जब हम लोग टुगेदर रखते हैं और जब वो एक सेंस बनाता है, जब वो मीनिंग बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस. ओके. Now, children, proceeding further, that is on your chapter 2, what it is written, subject and predicate. Subject and predicate. This is the definition of a sentence, children. This is the definition of a sentence. I am writing one sentence on the blackboard. I am writing one sentence on the blackboard, children. Look at the sentence. I go to school by bus. This is my sentence. ये जो हमारा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंग निकालता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. Got it, all of you? Now, children, a sentence has two parts. एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट. ठीक है? Now, children, before that, I want to ask you that who is the doer in this sentence? Who is the doer in this sentence? What is the meaning of doer? What is the meaning of doer, children? इस सेंटेंस में लिखा है, हम स्कूल जाते हैं बस से. हम स्कूल जाते हैं बस से. एंड आई एम आस्किंग यू, और हम पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये काम कोई कर रहा है. हम स्कूल जाते हैं बस से. इस सेंटेंस में, चिल्ड्रन, कौन है जो बता रहा है? कौन सा वर्ड ऐसा बता रहा है जो कि काम कर रहा है? कौन सा वर्ड बता रहा है, चिल्ड्रन? आई. आई बता रहा है. आई जो है वो डूअर है. मतलब आई जो है ये काम कर रहा है. आई जो है ये काम कर रहा है. आई जो है ये एक्शन कर रहा है. कौन सा एक्शन कर रहा है? स्कूल जा रहा है. तो आई इज द डूअर. ओके. नाउ, चिल्ड्रन, व्हाट इज गो? What is go, children? Go is the verb here. Go is the verb here. Understood, all of you? Now, children, what you are studying? You are studying subject and predicate. Okay? तो जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. वही हमारा क्या कहलाता है, चिल्ड्रन? सब्जेक्ट. जो डूअर है, जो काम कर रहा होता है, वो हमको क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सब्जेक्ट. एंड यहां से हमारा वर्ब शुरू है, चिल्ड्रन. वर्ब से लेके बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट. बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन? प्रेडिकेट. ओके.
Now first you understand this thing that a sentence is a group of words that makes a complete sense. A sentence has two parts, that is subject and predicate. Okay? Now you will understand by some more examples, children. Look at the blackboard. Look at the blackboard, children. The birds are flying. The birds are flying. And I am asking you to choose, or not to choose, to say me where is subject and predicate. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहाँ है? So children, what I have taught you, हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इस सेंटेंस में जो है कौन डूअर है, कौन काम कर रहा है, कौन डूअर है चिल्ड्रन, कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है चिल्ड्रन? यस, करेक्ट, द बर्ड्स. ये जो बर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये डूअर है. तो जो डूअर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट. Understood all of you? Let's take another example, children. The boy was eating a mango. The boy was eating a mango. इस सेंटेंस में चिल्ड्रन आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है. The work is being done. यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में काम हो रहा है. तो कौन सा काम हो रहा है चिल्ड्रन? मैंगो के खाने का काम हो रहा है. कौन सा काम हो रहा है? मैंगो के खाने का काम हो रहा है. ये मैंगो कौन खा रहा है? ये मैंगो कौन खा रहा है चिल्ड्रन? तो द बॉय. मैंगो कौन खा रहा है? द बॉय. यहाँ पे बॉय जो है कुछ काम कर रहा है. इस सेंटेंस में देखिए ये जो द बॉय है ये कुछ काम कर रहा है. तो दिस बॉय विल बी योर व्हाट चिल्ड्रन? दिस बॉय विल बी योर subject and rest part of the sentence will be predicate. Have you understood, children? Let's take some more examples, children. I will give you some more examples. यहाँ पे चिल्ड्रन आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ काम हो रहा है. सम वर्क इज डन हियर. कुछ काम हो रहा है चिल्ड्रन कि हम लोग पार्क रोज जाते हैं, रोज जाते हैं. नाउ चिल्ड्रन, हु इज डूइंग दिस वर्क? ये काम जो है चिल्ड्रन कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है चिल्ड्रन? वी गो टू पार्क एवरी डे. हम लोग रोज पार्क जाते हैं. तो ये काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है. ये काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है. तो वी इज अ सब्जेक्ट. एंड गो टू द पार्क
Let's take some more examples. My driver drove carefully. मेरा ड्राइवर जो है बहुत ध्यान से चला रहा था. My driver drove carefully. Now children, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कुछ काम हो रहा है. Work is being done here. यहाँ पे काम हो रहा है. कौन सा काम हो रहा है? ड्राइव करने वाला काम हो रहा है. कौन ड्राइव कर रहा है? Who is the doer? इस सेंटेंस में कौन डूअर है? कौन काम कर रहा है चिल्ड्रन इस सेंटेंस में? तो my driver, मेरा ड्राइवर. So my driver will be what children? My driver will be your subject, and the rest of the sentence will be your predicate. Understood all of you children? Now something more children I am going to explain you. ये subject and predicate को आप लोग समझ गए हैं. Children, come. I am writing a sentence here. He is a good player. He is a good player. Now children, in this sentence, where is subject and where is predicate? What will be your answer? Who is in this sentence children? You cannot find doing work. यहाँ पे आप लोग जो है ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पे doing words है. इस सेंटेंस में आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है. So children, before this explaining you, I want to tell you something, that there are some words which are known as verb. जैसे कि children जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग is, was, are, had, were, ये सब फेस करके करेंगे. आप लोग इन वर्ड्स को चिल्ड्रन फेस करेंगे और ये सारे वर्ड्स जो है हमारे क्या कहलाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ड. ये हमारे सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे चिल्ड्रन? ऑक्सिलरी वर्ड. ठीक है, ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, ये हमारे सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ड. यहाँ पे हम आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चूज करिए. तो चिल्ड्रन, जिस सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है चिल्ड्रन, तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लेते हैं. हम लोग कहाँ से क्या लेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को. गॉट इट? सो लुक एट द सेंटेंस. ही इज अ गुड प्लेयर. वह गुड प्लेयर है. सो चिल्ड्रन, वेयर इज द सब्जेक्ट हियर? वेयर इज द सब्जेक्ट हियर चिल्ड्रन? हियर ही इज द सब्जेक्ट, and after is a good player is a predicate. Got it all of you? Now children, अब तक तो हम आप लोगों को बता दिए कि ये जो है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट रहता है. जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वो कौन सा एक्शन कर रहा है? That will be your predicate. Okay? Now children, again remember one thing. Predicate always contains
अ वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब मौजूद रहेगा। प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स वर्ब, प्रेडिकेट में ऑलवेज जो है वर्ब मौजूद रहेगा। या तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा या तो चिल्ड्रन मेन वर्ब रहेगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा या तो मेन वर्ब रहेगा। नाउ यू विल आस्क मी मैम व्हाट इज द मेन वर्ब। मैम मेन वर्ब क्या है? आप जो भी एक्शन कर रहे होते हैं, या तो यू ईट और प्ले और ड्रिंक और राइट, जंप, सी, ये जो भी एक्शन वर्ड्स है चिल्ड्रन जिससे कि आप एक्शन करते हैं वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस में जो है ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है, मेन वर्ब मौजूद है, तो उस पार्ट से हम लोग उसको प्रेडिकेट मान लेंगे और जो एक्शन कर रहा होता है चिल्ड्रन उसको क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। एंड प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दैट प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन? Now I am revising again the previous examples which I have given you. जो हम पहले examples दिए थे हम उसको अब रिवाइज करने जा रहे हैं। My first example was, I have raised this also. Now children, I have told you that I am going to revise the previous examples which I gave you. Now children, first example I gave you, the birds are flying in the sky. Now children, I am asking you that where is the subject and where is the predicate. So what you will tell me? What you will tell me? How you will come to know that where is the subject and where is the predicate? How will you come to know, children? First you will search where is the doer. पहले आप लोग सर्च करेंगे सेंटेंस में कि doer कहाँ है, कौन ये काम कर रहा है। तो कौन ये काम कर रहा है? The birds are doing, birds ये काम कर रहे हैं, तो birds will be the subject। और बाकी का जो पार्ट है चिल्ड्रन, what it will be, जो ये काम करता है, वो जो ये काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट है। और वो क्या कर रहा है, कौन सा काम वो कर रहा है, that will be predicate. Now children look in this sentence. predicate ये है, सॉरी सब्जेक्ट ये है, predicate ये है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि predicate में वर्ब होना जरूरी है। तो इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है चिल्ड्रन? ये हमारा आर वर्ब है और ये हमारा फ्लाइंग वर्ब है। आर हमारा कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब है। आर हमारा कौन सा है चिल्ड्रन? ऑक्सिलरी वर्ब है और ये फ्लाइंग हमारा
Let's take another example, children, which I have taken. We go to park every day. We go to park every day. Now, children, in this sentence, where is the subject and where is the predicate? Where is the subject and where is the predicate, children? What you will say me that, ma'am, who is doing the action, that will be the subject. तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है, चिल्ड्रन? कौन रोज पार्क जाता है? वी. तो वी विल बी योर व्हाट? वी विल बी योर subject. We will be your subject and go to park every day will be your predicate. और अभी हम क्या बताए थे कि सारे predicate में क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए चिल्ड्रन? सब सारे predicate में क्या रहना चाहिए? बोलो, tell me children, predicate में क्या रहना जरूरी है? क्या रहना जरूरी है predicate में, children? Reply me. Do you know the answer? Reply me, children. Yes. Predicate में verb का रहना जरूरी है. तो where is verb here? Where is verb here, children? This go is your verb. Understood, all of you? Now your next example which I have given. My driver drove carefully. My driver drove carefully. Now, children, where is the subject here? कौन इस सेंटेंस में काम हो रहा है? ओके, काम हो रहा है. कौन वो काम कर रहा है? कौन वो काम कर रहा है, चिल्ड्रन? My driver. कौन? Driver will be your subject. And drove carefully will be your predicate. Drove carefully will be your predicate. Are you getting, children? Drove carefully will be your predicate. So, children, what I have told you that predicate में क्या रहना जरूरी है? Predicate में क्या रहना जरूरी है, children? Yes, correct. Verb रहना जरूरी है. So where is the verb here? Drove is here. Verb. Drove हमारा क्या है? Verb है. Understood, all of you, children? Understood, all of you? Now, children, subject always comes at the beginning of the sentence. Subject हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आता है. ओके, चिल्ड्रन? नाउ कम टू योर बुक ऑन पेज नंबर 5. On page number 5, children, subject and predicate is given. Underline the names of the people or the animals who are doing the action. Now in this exercise, you have to underline the names of the people or animal. इस सेंटेंस में जो भी 5 सेंटेंसेस दिए हैं, उस सेंटेंस में आप लोगों को people और animals जो काम कर रहे हैं चिल्ड्रन, उनको ही केवल अंडरलाइन करना है. ओके, चिल्ड्रन? सो डू दिस एक्सरसाइज. Go through my video once or twice and then understand. Next I will explain you in the next video. Okay, have a good day now.